آج ہم یونائٹڈ اسٹیٹ کی ہسٹری کے اس ٹرننگ پوائنٹ کو ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں جس نے صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ ماڈرن کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی کی ڈائریکشن بھی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ اگر آج آپ امریکہ کا کانسٹیٹیوشن دیکھتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ دیکھتے ہیں، پریزیڈنٹ، کانگریس اور سپریم کورٹ کا سسٹم دیکھتے ہیں تو شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے، یہ سب سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ کیا فلیڈیلفیا کنونشن صرف ایک نارمل میٹنگ تھی؟ کیا فاؤنڈنگ فادرز پہلے ہی ڈیسائیڈ کر چکے تھے کہ نیا کانسٹیٹیوشن بنانا ہے، یا پھر یہ تمام ڈیولپمنٹ ایک سیریز آف کرائسس کا نتیجہ تھی؟ آج کے لیکچر میں ہم اسی فیسینیٹنگ جرنی کو سمجھیں گے، کیسے آرٹیکل آف کنفیڈریشن کی ویکنس نے امریکہ کو پولیٹیکل اور اکنامک کرائسس میں دھکیل دیا، کیسے اناپولیس کنونشن نے ایک نئی سوچ کو جنم دیا، اور کیسے آخرکار فلیڈیلفیا کنونشن کا راستہ ہموار ہوا۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ 1783 امریکن ریولوشنری وار آفیشلی ختم ہو چکی تھی۔ برٹن نے ٹریٹی آف پیرس کے ذریعے یونائٹڈ اسٹیٹس کی انڈیپینڈنس کو ریکگنائز کر لیا۔ پوری دنیا میں سیلیبریشن کا ماحول تھا، لیکن ہسٹری کا ایک انٹرسٹنگ رول ہے، وار جیتنا اکثر گورنمنٹ چلانے سے آسان ہوتا ہے۔ برٹش امپائر کو ہرانا ایک چیلنج تھا، لیکن اب ایک نیا چیلنج سامنے تھا، ایک نئی نیشن کو چلایا کیسے جائے۔ یاد رکھیے، وار کے دوران امریکن کالونیز نے مل کر برٹش رول کے اگینسٹ اسٹرگل کی تھی، لیکن انڈیپینڈنس کے بعد ہر اسٹیٹ اپنے آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری سمجھنے لگی۔ ورجینیا کی اپنی پریورٹیز تھیں، میساچیوسیٹس کی اپنی، نیو یارک کی اپنی، ساؤتھ کیرولینا کی اپنی، سب کو فریڈم چاہیے تھی، لیکن کوئی بھی اپنی سوورینٹی سیکریفائس کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے ریولوشنری وار کے دوران ایک ٹیمپوریری نیشنل گورنمنٹ اسٹیبلش کی گئی، جسے ہم آرٹیکل آف کنفیڈریشن کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ امریکہ کا پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن تھا، لیکن اس کانسٹیٹیوشن کا ڈیزائن جان بوجھ کر ویک رکھا گیا تھا۔ کیونکہ کالونسٹ نے برٹش کنگ جارج III کی پاورفل سینٹرلائزڈ گورنمنٹ کا ایکسپیرینس کیا ہوا تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر نئی نیشنل گورنمنٹ بھی پاورفل ہوئی تو کہیں پھر سے ڈکٹیٹرشپ یا ٹائرنی واپس نہ آ جائے۔ اس لیے انہوں نے ڈیلیبریٹلی فیڈرل گورنمنٹ کو لمیٹڈ پاورز دی اور زیادہ اتھارٹی اسٹیٹ کے پاس چھوڑ دی۔ اس وقت یہ ارینجمنٹ لاجیکل لگ رہا تھا، مگر کچھ ہی سالوں میں اس کے سیریس کانسیکوینسز سامنے آنے لگے۔ آرٹیکلز کا سب سے امپورٹنٹ پرنسپل تھا اسٹیٹ ریمین سوورن، یعنی ہر اسٹیٹ اپنی انڈیپینڈنس اور اتھارٹی کو پریزرو کرے گی۔ نیشنل گورنمنٹ صرف کچھ لمیٹڈ میٹرز ہینڈل کرے گی۔ کانگریس موجود تھی، لیکن اس کے پاس ایگزیکٹو برانچ نہیں تھی، کوئی پریزیڈنٹ نہیں تھا، کوئی نیشنل جوڈیشری نہیں تھی، سپریم کورٹ بھی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی۔ نیشنل گورنمنٹ لاز بنا بھی لیتی تھی، لیکن ان کو انفورس کرنے کا میکانزم ہی نہیں تھا۔ اگر کسی اسٹیٹ نے فیڈرل ڈیسیژن اگنور کر دیا تو کانگریس کے پاس اسے فورس کرنے کا کوئی پریکٹیکل طریقہ ہی نہیں تھا۔ سوچئے، اگر آج فیڈرل گورنمنٹ ٹیکس کلیکٹ نہ کر سکے، آرمی مینٹین نہ کر سکے اور اپنے ہی لاز امپلیمنٹ نہ کر سکے تو کیا وہ افیکٹو گورنمنٹ کہلا سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ اور یہی آرٹیکل کی سب سے بڑی ویکنس تھی۔ اس کے بعد فائنینشیل کرائسس کی بات کرتے ہیں۔ ریولوشنری وار بہت مہنگی تھی۔ وار کے دوران کانگریس نے لونز لیے، فرانس سے مدد لی، پرائیویٹ لینڈر سے قرض لیا گیا، سولجرز کی سیلری پینڈنگ کی گئی۔ لیکن وار کے بعد سب سے بڑا سوال تھا، یہ پیسہ واپس کون کرے گا؟ نارملی نیشنل گورنمنٹ ٹیکس کلیکٹ کرتی، لیکن آرٹیکل آف کنفیڈریشن کے اندر کانگریس کے پاس ٹیکس امپوز کرنے کی پاور ہی نہیں تھی۔ کانگریس صرف اسٹیٹ سے ریکویسٹ کر سکتی تھی، آرڈر نہیں، اور کئی اسٹیٹ سمپلی پیسہ دینے سے منع کر دیتی تھی۔ ہر اسٹیٹ اپنی فائنینشیل پرابلم میں الجھی ہوئی تھی۔ رزلٹ کیا نکلا؟ نیشنل ٹریجری لگ بھگ خالی رہنے لگی، گورنمنٹ ڈیٹس بڑھتے گئے، فورن کریڈیٹرز پریشان ہونے لگے، امریکہ کی انٹرنیشنل ریپوٹیشن افیکٹ ہونے لگی۔ یورپ کے کنٹری سوچنے لگے، کیا یہ نیا ریپبلک فائنینشلی ریلائبل بھی ہے یا نہیں؟ یہ صرف اکنامک ایشو نہیں تھا، یہ امریکہ کی کریڈیبلٹی کا سوال تھا۔ اس کے بعد ایک اور سیریس پرابلم سامنے آئی، ہر اسٹیٹ اپنی اکنامک پالیسی خود بنا رہی تھی۔ ورجینیا نے ایک ٹیکس لگا دیا تھا، نیو یارک نے دوسرا، میساچیوسیٹس نے تیسرا۔ ایک اسٹیٹ دوسری اسٹیٹ کی گڈز پر کسٹم ڈیوٹیز امپوز کر رہی تھی۔ امیجن کریے، اگر پاکستان کے اندر پنجاب سے سندھ مال بھیجنے پر الگ کسٹم ٹیکس لگ جائے اور سندھ سے KPK بھیجنے پر الگ ڈیوٹی لگ جائے تو نیشنل مارکیٹ کا کیا ہوگا؟ بالکل اسی طرح امریکہ کے اندر انٹرنیشنل ٹریڈ ڈسٹرب ہونے لگی، اسٹیٹس ایک دوسرے کے کمپٹیٹرز بن گئیں، نیشنل یونٹی کی جگہ
रीजनल इंटरेस्ट डोमिनेट करने लगा, मर्चेंट्स कंप्लेंट करने लगे, बिजनेसमैन फ्रस्ट्रेटेड होने लगे, कॉमर्स स्लो होता गया और कांग्रेस कुछ भी नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि उसके पास इंटर स्टेट कॉमर्स रेगुलेट करने की कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं थी। सिर्फ इंटरनल ट्रेड ही प्रॉब्लम नहीं था, इंटरनेशनल ट्रेड भी डिस्टर्ब होने लगा। ब्रिटेन ने अमेरिकन गुड्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाना स्टार्ट कर दी। ब्रिटिश वेस्ट इंडीज की मार्केट अमेरिकन मर्चेंट्स के लिए काफी हद तक बंद कर दी गई। अमेरिका को यूनिफाइड ट्रेड पॉलिसी की जरूरत थी, लेकिन कांग्रेस किसी एक नेशनल कॉमर्स पॉलिसी को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं कर सकती थी। हर स्टेट अपनी नेगोशिएशंस और पॉलिसी बना रही थी। फॉरेन कंट्रीज भी कंफ्यूज थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अमेरिका से डील किस अथॉरिटी के थ्रू की जाए, नेशनल गवर्नमेंट या इंडिविजुअल स्टेट्स। ये कंफ्यूजन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को भी वीक कर रही थी। इसके अलावा मिलिट्री वीकनेस हो रही थी। एक सॉवरन नेशन जो होती है उसको अपनी सिक्योरिटी के लिए स्टैंडिंग मिलिट्री फोर्स की जरूरत होती है, लेकिन आर्टिकल के अंडर कांग्रेस परमानेंट आर्मी मेंटेन नहीं कर सकती थी। आर्मी के लिए भी स्टेट की कोऑपरेशन जरूरी थी। अगर स्टेट्स सोल्जर्स या फंड ना दें तो नेशनल डिफेंस प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता था। ब्रिटिश ट्रूप अभी कुछ वेस्टर्न फोर्ट्स में मौजूद थे। स्पेन मिसिसिपी रिवर के इशू पर प्रेशर डाल रहा था। नेटिव अमेरिकन रेजिस्टेंस फ्रंटियर पर कंटिन्यू थी, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट के पास इन चैलेंजेस को इफेक्टिवली हैंडल करने के लिमिटेड रिसोर्सेज थे। ये सिचुएशन बहुत डेंजरस होती जा रही थी। इसके अलावा आर्टिकल के अंदर डिसीजन मेकिंग भी बहुत डिफिकल्ट थी। पॉलिटिकल पैरालिसिस था। इंपॉर्टेंट लॉज पास करने के लिए लार्ज मेजॉरिटी की जरूरत होती थी और आर्टिकल को अमेंड करना हो तो तमाम स्टेट्स की यूनानिमस अप्रूवल जरूरी थी। यानी अगर सिर्फ एक स्टेट भी डिसएग्री करे तो अमेंडमेंट इम्पॉसिबल हो जाता था। सोचिए कितना रिजिड सिस्टम था। गवर्नमेंट प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज तो कर लेती थी, लेकिन इनका सोल्यूशन इंप्लीमेंट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता था। इसी वजह से हिस्टोरियन आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन के पीरियड को अक्सर द क्रिटिकल पीरियड भी कहते हैं। ये वो वक्त था जब कई लोग जेन्युइनली सोचने लगे थे कि शायद अमेरिकन एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। क्या रिपब्लिक सरवाइव कर पाएगी या स्टेट्स अलग अलग कंट्रीज बन जाएंगी? ये सवाल उस वक्त बिल्कुल रियल था। इन तमाम प्रॉब्लम्स के दरमियान एक प्रैक्टिकल इशू ने दो इंपॉर्टेंट स्टेट्स को एक टेबल पर ला बिठाया। वर्जीनिया और मैरीलैंड के दरमियान पोटोमक रिवर और नेविगेशन राइट्स का डिस्प्यूट चल रहा था। रिवर कॉमर्स दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, लेकिन रेगुलेशंस क्लियर नहीं थी। इस इशू को पीसफुली सॉल्व करने के लिए 1785 में दोनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव मिले। ये मीटिंग माउंट वर्नॉन कॉन्फ्रेंस के नाम से मशहूर हुई। माउंट वर्नॉन किसका घर था? जॉर्ज वाशिंगटन का। इसी वजह से मीटिंग उनकी स्टेट पर हुई। कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव सिर्फ रिवर नेविगेशन का डिस्प्यूट सॉल्व करना था, लेकिन डिस्कशंस के दौरान डेलीगेट को एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन हुई। उन्होंने महसूस किया कि ये प्रॉब्लम सिर्फ पोटोमिक रिवर की नहीं थी, असल प्रॉब्लम पूरे कन्फेडरेशन के कमर्शियल सिस्टम में है। अगर सिर्फ दो स्टेट्स के दरमियान ट्रेड रूल इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं तो फिर तमाम 13 स्टेट्स के दरमियान कॉमर्स कितना डिफिकल्ट होगा। इसी रियलाइजेशन ने एक नए नेशनल कन्वेंशन का आइडिया पैदा किया। ये आइडिया था कि तमाम स्टेट्स मिलकर कॉमर्स के इश्यूज डिस्कस करें और एक कॉमन पॉलिसी डेवलप करें। इसी सोच ने अगले साल अमेरिकन हिस्ट्री की एक और इम्पोर्टेंट मीटिंग को जन्म दिया, अनोपलिस कन्वेंशन को। माउंट वर्नॉन कॉन्फ्रेंस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्लियर कर दी गई थी कि अमेरिका का मसला सिर्फ एक रिवर डिस्प्यूट या दो स्टेट्स के दरमियान ट्रेड डिसएग्रीमेंट नहीं था, मसला पूरे कॉन्फेडरेशन के स्ट्रक्चर में था। अब जरूरत थी एक ऐसी नेशनल मीटिंग की जहां तमाम स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव मिलकर कॉमर्स और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का परमानेंट सोल्यूशन ढूंढें। इसी ऑब्जेक्टिव के साथ 1786 में एक कन्वेंशन बुलाया गया। ये मीटिंग हुई अनोपलिस स्टेट ऑफ मैरीलैंड में और हिस्ट्री में ये अनोपलिस कन्वेंशन के नाम से मशहूर हुई। अब हम अनोपलिस कन्वेंशन 1786 के बारे में बात कर लेते हैं। सितंबर 1786 एक्सपेक्टेशन ये थी कि तमाम 13 स्टेट्स अपने डेलीगेट्स भेजेंगी, लेकिन जब मीटिंग शुरू हुई तो एक सरप्राइजिंग सिचुएशन सामने आई। सिर्फ 5 स्टेट्स ने ऑफिशियली डेलीगेट्स भेजे। वो 5 स्टेट्स कौन सी थी? न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, डेलावेयर और वर्जीनिया। कुछ स्टेट्स ने डेलीगेट्स नॉमिनेट तो किए थे, लेकिन वो वक्त पर पहुंच ही ना सके। कुछ ने बिल्कुल पार्टिसिपेशन ही नहीं की।
और कुछ स्टेट्स को इस कन्वेंशन की इम्पोर्टेंस का अंदाजा ही नहीं था। अब सोचिए, जब 13 स्टेट में से सिर्फ 5 स्टेट प्रेजेंट हो तो क्या कोई नेशनल डिसीजन लिया जा सकता था? बिल्कुल नहीं। कन्वेंशन के पास लीगल अथॉरिटी नहीं थी कि वो तमाम अमेरिका के लिए कोई बाइंडिंग रिकमेंडेशन पास करे। यानी टेक्निकली मीटिंग हुई लेकिन उसका ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव अचीव ना हो सका। लेकिन हिस्ट्री की खूबसूरती यही है, कभी कभी जो मीटिंग फेल नजर आती है वही सबसे सक्सेसफुल साबित होती है, और अनोपलीज कन्वेंशन इसकी परफेक्ट एग्जांपल है। अब बात कर लेते हैं कि डेलीगेट्स ने सबसे इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन क्या की। कन्वेंशन के डेलीगेट्स ने सिर्फ कॉमर्स डिस्कस नहीं की, उन्होंने आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन के पूरे सिस्टम का एनालिसिस किया। डिस्कशन के दौरान रिपीटेडली ये बात सामने आती रही कि ट्रेड प्रॉब्लम एक्चुअली इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है। अगर फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर ही नहीं होगी तो वो कॉमर्स रेगुलेट कैसे करेगी? अगर कांग्रेस टैक्स कलेक्ट ही नहीं कर सकती तो फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबल कैसे होगा? और अगर स्टेट्स अपनी मर्जी के लॉज बनाती रहेंगी तो नेशनल यूनिटी कैसे एस्टेब्लिश होगी? यहाँ डेलीगेट्स एक बहुत गहरी कंक्लूजन पर पहुंचे। अमेरिका को सिर्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं चाहिए बल्कि उनको पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी चाहिए, और शायद पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को दोबारा देखने की जरूरत है। ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। क्यों? क्योंकि ऑफिशियली कन्वेंशन को सिर्फ कॉमर्स डिस्कस करना थी, लेकिन डेलीगेट्स की थिंकिंग उससे काफी आगे निकल चुकी थी। अब यहाँ पर एंटर करते हैं कैसे शख्स जिसका नाम आने वाले सालों में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का सेंट्रल कैरेक्टर बनने वाला था, अलेक्जेंडर हैमिल्टन। उस वक्त हैमिल्टन कंपैरेटिवली यंग पॉलिटिशियन थे, लेकिन उनकी पॉलिटिकल विजन बहुत क्लियर थी। वो स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन अमेरिका को सरवाइव नहीं करने देंगे। उनका मानना था कि A weak government eventually produce a weak nation. हैमिल्टन देख रहे थे कि यूरोप की पावरफुल किंगडम्स अमेरिका को सीरियसली नहीं ले रही, फॉरेन गवर्नमेंट्स अमेरिकन क्रेडिट पर ट्रस्ट नहीं कर रही, इकोनॉमिक सिस्टम कोलैप्स के करीब था और स्टेट्स एक दूसरे से कोऑपरेट करने की बजाय compete कर रही थी। मिल्टन समझ गए थे कि अगर इसी तरह चलता रहा तो रेवोल्यूशनरी वार की सारी सैक्रिफाइसेस जाया हो सकती हैं। इसलिए उन्होंने अनोपलीज कन्वेंशन के डेलीगेट्स को कन्विंस किया कि सिर्फ कॉमर्स रिफॉर्म्स काफी नहीं और एक बड़े नेशनल कन्वेंशन की डिमांड की। कन्वेंशन के एंड पर डेलीगेट्स ने एक फॉर्मल रिपोर्ट प्रिपेयर की। ये रिपोर्ट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में से एक मानी जाती है। रिपोर्ट का टोन बहुत इंटरेस्टिंग था। डेलीगेट्स ने ये नहीं लिखा कि आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन को फौरन खत्म कर दिया जाए, बल्कि उन्होंने बहुत डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज की। उन्होंने कहा करंट सिस्टम में इतनी डेफिशिएंसीज हैं कि एक और नेशनल कन्वेंशन बुलाई जानी चाहिए जहां फेडरल गवर्नमेंट की पावर्स और स्ट्रक्चर को प्रॉपरली एग्जामिन किया जा सके। नोटिस कीजिए, लैंग्वेज बहुत केयरफुल थी। डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन अवॉइड की गई, लेकिन मैसेज बिल्कुल क्लियर था कि अमेरिका का एग्जिस्टिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा। अनोपलीज कन्वेंशन का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन यही था कि अगली मीटिंग सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं होगी, उसका पर्पस होगा इंटायर फेडरल सिस्टम को रिव्यू करना। डेलीगेट्स ने रिकमेंड किया कि नेक्स्ट कन्वेंशन फिलाडेल्फिया में बुलाई जाएगी और इसमें तमाम स्टेट्स को इनवाइट किया जाएगा ताकि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज करने का प्रपोजल प्रिपेयर किया जा सके। ये रिकमेंडेशन उस वक्त शायद सिर्फ एक सजेशन लग रही थी, लेकिन असल में इसी रिकमेंडेशन ने मॉडर्न यूनाइटेड स्टेट की फाउंडेशन रख दी। अब सवाल ये था, क्या कॉन्फेडरेशन कांग्रेस इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट कर देगी? शुरू में कांग्रेस हेजिटेंट थी। कुछ मेंबर को डर था कि अगर नया कन्वेंशन बुला लिया गया तो कहीं पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ही कोलैप्स ना कर जाए। कुछ पॉलिटिशियन कहते थे आर्टिकल परफेक्ट नहीं है, लेकिन उन्हें इम्प्रूव किया जा सकता है। दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना था कि इम्प्रूवमेंट अब पॉसिबल नहीं है, कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत है। यह डिबेट कई महीने चलती रही, लेकिन फिर कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिन्होंने कांग्रेस को भी मजबूर कर दिया कि वो सिचुएशन की सीरियसनेस को समझे। उसके बाद बात कर लेते हैं शेज रिबिलियन की। अमेरिका के लिए ये एक वार्निंग बेल थी। 1786 के आखिर में और 1787 के शुरू में मैसाचुसेट्स में एक सीरियस अपराइजिंग स्टार्ट हुई। उसे हम शेज रिबिलियन के नाम से जानते हैं। इस रिबिलियन की लीडरशिप डैनियल शेज नाम के फॉर्मर रेवोल्यूशनरी वार कैप्टन ने की। वार खत्म हो चुकी थी, लेकिन बहुत से फार्मर्स कर्जों में डूब चुके थे। हैवी टैक्सेस लग रहे थे, कोर्ट्स उनकी प्रॉपर्टी सीज कर रही थी
कुछ लोग अपनी जमीनें खो रहे थे। फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ गई कि आर्म्ड प्रोटेस्ट शुरू हो गए। फार्मर्स ने कोर्ट बंद करवाने की कोशिश की। गवर्नमेंट अथॉरिटी को ओपनली चैलेंज किया गया। अब एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम सामने आई। फेडरल गवर्नमेंट के पास परमानेंट आर्मी नहीं थी। वो रिबिलियन सप्रेस ही नहीं कर सकती थी। स्टेट मिलिशिया ने आखिरकार रिवोल्ट कंट्रोल किया, लेकिन पूरे अमेरिका ने एक डेंजरस रियलिटी देख ली। अगर किसी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो जाए तो फेडरल गवर्नमेंट प्रैक्टिकली हेल्पलेस होगी। जॉर्ज वाशिंगटन तक को ये रिपोर्ट्स बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। उन्होंने प्राइवेटली लिखा कि अगर गवर्नमेंट अपने ही लॉज इन्फोर्स नहीं कर सकती तो रिपब्लिक की सर्वाइवल खतरे में है। शेज रिबिलियन ने उन तमाम फियर्स को रियलिटी बना दिया जो हैमिल्टन और दूसरे रिफॉर्मर्स पहले ही एक्सप्रेस कर रहे थे। अब सिर्फ इंटेलेक्चुअल डिबेट नहीं चल रही थी, अब नेशनल स्टेबिलिटी का सवाल था। उसके बाद आता है फेब 1787। कॉन्फेडरेशन कांग्रेस ने फाइनली एक हिस्टोरिक रेजोल्यूशन पास की। कांग्रेस ने ऑफिशियली स्टेट्स को इनवाइट किया कि वो अपने डेलीगेट्स फिलाडेल्फिया भेजें। कन्वेंशन की ऑफिशियल वर्डिंग बहुत इंटरेस्टिंग थी। इसमें कहा गया कि मीटिंग का पर्पस होगा आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन को रिवाइज करना और उनमें ऐसी अमेंडमेंट रिकमेंड करना जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को एडिकेट बना सके। नोटिस कीजिए, ऑफिशियली ऑब्जेक्टिव सिर्फ रिवीजन था। कभी भी ये नहीं लिखा गया था कि बिल्कुल नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा। उस वक्त किसी को ऑफिशियली ये अथॉरिटी दी ही नहीं गई थी, लेकिन हिस्ट्री कभी कभी ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन से कहीं ज्यादा बड़ी डायरेक्शन ले लेती है और फिलाडेल्फिया में भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। कांग्रेस के इनविटेशन के बाद स्टेट्स ने अपने रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट करना स्टार्ट कर दिए। हर स्टेट ने कोशिश की कि अपने सबसे एक्सपीरियंस्ड लॉयर, पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल थिंकर्स, जजेस, मिलिट्री लीडर्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स को भेजा जाए। ये ऑर्डिनरी पॉलिटिशियन की गैदरिंग नहीं थी, ये उस जनरेशन के ब्राइटेस्ट माइंड की असेंबली बनने जा रही थी। कुछ लोग रेवोल्यूशनरी वार के हीरोज थे, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, कुछ इकोनॉमिस्ट और कुछ डिप्लोमेसी के मास्टर्स। सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस के साथ फिलाडेल्फिया की तरफ रवाना होने लगे। उनमें से कई लोगों को अभी तक भी लग रहा था कि वो सिर्फ आर्टिकल्स को इम्प्रूव करने जा रहे हैं। उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था कि चंद महीनों बाद वो दुनिया का सबसे इन्फ्लुएंशियल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर चुके होंगे। और इस तरह 1787 की गर्मियों में अमेरिका की तकदीर लिखने के लिए एक हिस्टोरिक कन्वेंशन शुरू होने वाली थी। मई 1787। फिलाडेल्फिया उस वक्त अमेरिका का सबसे इम्पोर्टेंट सिटीज में से एक था। ये सिटी पहले भी रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स का सेंटर रह चुका था, यानी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस यहाँ पे साइन हुई थी। और अब तकदीर ने एक बार फिर इस सिटी को हिस्ट्री लिखने के लिए चुना। स्टेट डेलीगेशन एक एक करके फिलाडेल्फिया पहुंचना शुरू हुई। मीटिंग की जगह थी पेंसिल्वानिया स्टेट हाउस, जिसे आज हम इंडिपेंडेंस हॉल के नाम से जानते हैं। इस बिल्डिंग के अंदर आने वाले चंद महीनों में ऐसी डिबेट्स होनी थी जो सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करने वाली थी। डेलीगेट्स कौन थे? आखिर फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में कितने डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया? टोटल 55 डेलीगेट्स ने कन्वेंशन में किसी न किसी स्टेज पर पार्टिसिपेशन की। ये डेलीगेट्स 12 स्टेट से आए थे। एक स्टेट ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, वो थी रोड आइलैंड। रोड आइलैंड को डर था कि अगर फेडरल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दे दी गई तो स्टेट्स की इंडिपेंडेंस कम हो जाएगी, इसलिए उसने अपने डेलीगेट्स भेजने से इनकार कर दिया। अब बाकी जो 12 स्टेट्स के डेलीगेट्स थे ये उस वक्त के सबसे एजुकेटेड और एक्सपीरियंस लोगों में शुमार होते थे। इनमें लॉयर्स भी थे, जजेस भी, बिजनेसमैन भी, मिलिट्री ऑफिसर्स भी, पॉलिटिकल फिलोसोफर भी। यानी अगर उस जमाने के बेस्ट माइंड्स की लिस्ट बनाई जाए तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में मौजूद था। कुछ अहम शख्सियात की बात कर लेते हैं। सबसे पहला नाम जॉर्ज वाशिंगटन, वार ऑफ इंडिपेंडेंस के नेशनल हीरो। उनकी पर्सनैलिटी इतनी रिस्पेक्टेड थी कि उनकी प्रेजेंस ही कन्वेंशन को लेजिटिमेसी दे रही थी। दूसरा नाम जेम्स मैडिसन, आज उन्हें अक्सर फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मैडिसन ने कन्वेंशन से पहले ही कई मंथ्स तक गवर्नमेंट की हिस्ट्री स्टडी की थी। उन्होंने ग्रीस, रोम, यूरोपियन रिपब्लिक्स और पॉलिटिकल फिलॉसफी का डिटेल्ड एनालिसिस किया। वो सिर्फ डिबेट्स में पार्टिसिपेट नहीं करने आए थे, वो तैयारी के साथ आए थे। तीसरा नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन। उस वक्त फ्रैंकलिन की एज 81 ईयर थी।
वो कन्वेंशन के सबसे सीनियर डेलीगेट थे। हेल्थ परफेक्ट नहीं थी, कई दफा उन्हें चेयर पर उठाकर हाल में लाया जाता था, लेकिन उनका एक्सपीरियंस और विजडम डेलीगेट्स के लिए बहुत वैल्यूएबल था। इसके अलावा अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जॉर्ज मेसन, रॉजर शेरमान, एडमंड रैंडोल्फ और कई दूसरे ब्रिलियंट माइंड भी कन्वेंशन का हिस्सा थे। हर डेलीगेट्स अपना एक्सपीरियंस और अपनी स्टेट का इंटरेस्ट लेके आया था। इसी वजह से डिस्कशन बहुत इंटेलेक्चुअली रिच होने वाली थी। कन्वेंशन फॉर्मली शुरू होने से पहले डेलीगेट्स को अपना प्रिजाइडिंग ऑफिसर सेलेक्ट करना था। इलेक्शन ऑलमोस्ट यूनानिमस थी, सब ने एक ही नाम सपोर्ट किया, जॉर्ज वाशिंगटन। ये डिसीजन सिर्फ प्रोसीजरल नहीं था, इसकी सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी। वाशिंगटन पॉलिटिकल पावर के लिए मशहूर नहीं थे, बल्कि उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनकी इंटेग्रिटी थी। रेवोल्यूशनरी वार के बाद उन्होंने वॉलंटरीली मिलिट्री कमांड छोड़ दी थी। उस जमाने में दुनिया के बहुत से मिलिट्री लीडर्स डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश कर देते थे, लेकिन वाशिंगटन ने ऐसा नहीं किया। इसी वजह से उन पर सब ट्रस्ट करते थे। उनकी चेयरमैनशिप ने डेलीगेट्स को कॉन्फिडेंस दिया कि डिबेट इम्पार्शियल एनवायरनमेंट में होंगी, और पब्लिक को भी यही सिग्नल मिला कि कन्वेंशन रिस्पॉन्सिबल लीडर के अंडर चल रही है। फिर हम बात करते हैं कन्वेंशन के ऑफिशियल ऑब्जेक्टिव की। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन, कन्वेंशन का ऑफिशियल मैंडेट क्या था? कांग्रेस ने जो रेजोल्यूशन पास किया था उसमें लिखा था आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन को रिवाइज किया जाए, यानी ऑफिशियली डेलीगेट्स का काम था एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्रूव करना, उसे कम्प्लीटली रिप्लेस करना। ऑफिशियली उनके मैंडेट में शामिल नहीं था, लेकिन सिर्फ कुछ ही दिन की डिस्कशन के बाद डेलीगेट्स को एक रियलिटी समझ आ गई। आर्टिकल्स की प्रॉब्लम सुपरफिशियल नहीं थी, ये फाउंडेशन की प्रॉब्लम थी। अगर बिल्डिंग की फाउंडेशन ही वीक हो तो सिर्फ दीवार पेंट कर देने से बिल्डिंग सिक्योर नहीं होती, उसे दोबारा कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह डेलीगेट्स आहिस्ता आहिस्ता इस कंक्लूजन पर पहुंचने लगे कि अमेरिका को अमेंडमेंट्स की नहीं बल्कि एक बिल्कुल नए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की जरूरत है। ये डिसीजन ऑफिशियली पहले दिन अनाउंस नहीं हुआ, ये डिस्कशन और रीजनिंग के प्रोसेस से ग्रेजुअली डेवलप हुआ, और यही फिलाडेल्फिया कन्वेंशन की सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात थी। जब डिबेट्स आगे बढ़ी तो डेलीगेट्स के सामने कुछ फाउंडेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने लगी। पहला ऑब्जेक्टिव एक स्ट्रॉन्ग नेशनल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करना। आर्टिकल के अंडर कांग्रेस पावरलेस थी, अब डेलीगेट्स ऐसी गवर्नमेंट बनाना चाहती थी जो नेशनल इश्यूज इफेक्टिवली सॉल्व कर सके। सेकंड ऑब्जेक्टिव टैक्सेशन की पावर था। गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्ट करने की कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी मिलनी चाहिए। बगैर पैसे के कोई भी स्टेट या नेशन इफेक्टिवली फंक्शन नहीं कर सकती। आर्मी मेंटेन करनी हो, डिप्लोमेसी चलानी हो, रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने हो, सबके लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज जरूरी होते हैं। थर्ड ऑब्जेक्टिव इंटरस्टेट और फॉरेन कॉमर्स को रेगुलेट करना था। हर स्टेट की अलग ट्रेड पॉलिसी नेशनल इकोनॉमी को डैमेज कर रही थी। डेलीगेट्स चाहते थे कि कॉमर्स के लिए एक यूनिफाइड नेशनल पॉलिसी हो ताकि पूरे अमेरिका में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो सके। फोर्थ ऑब्जेक्टिव था इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव ब्रांच क्रिएट करना। आर्टिकल के अंडर कोई प्रेसिडेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता था, इसलिए लॉज इन्फोर्स करने वाला कोई नेशनल एग्जीक्यूटिव ही नहीं था। डेलीगेट्स ने डिसाइड किया कि गवर्नमेंट के पास एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होनी चाहिए जो लॉज को इम्प्लीमेंट करे। ये आइडिया बाद में प्रेसिडेंसी की फाउंडेशन बना। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव था इंडिपेंडेंट नेशनल जुडिशरी एस्टेब्लिश करना। अगर स्टेट्स के दरमियान लीगल डिस्प्यूट हो या फेडरल लॉ की इंटरप्रिटेशन का इशू हो तो फाइनल डिसीजन कौन करे? इसलिए डेलीगेट्स नेशनल कोर्ट सिस्टम एस्टेब्लिश करना चाहते थे। बाद में इसी कॉन्सेप्ट से सुप्रीम कोर्ट का इंस्टीट्यूशन डेवलप हुआ। सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव था बैलेंस बिटवीन लिबर्टी एंड अथॉरिटी। ये शायद सबसे डिफिकल्ट ऑब्जेक्टिव था। एक तरफ लोग डिक्टेटरशिप से बचना चाहते थे, दूसरी तरफ वीक गवर्नमेंट भी नहीं चाहते थे। यानी चैलेंज ये था गवर्नमेंट इतनी पावरफुल हो कि नेशन को गवर्न कर सके, लेकिन इतनी पावरफुल भी ना हो कि सिटीजन की फ्रीडम को क्रश कर दे। इसी बैलेंस को अचीव करना कन्वेंशन का इंटेलेक्चुअल हार्ट था। कन्वेंशंस के कुछ रूल देख लेते हैं। अब सवाल उठता है इतने इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को एक हाल में डिसिप्लिन के साथ कैसे डिबेट करवाया जाए। कन्वेंशन शुरू होते ही डेलीगेट्स ने कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स अडॉप्ट किए और ये रूल्स कन्वेंशन की सक्सेस की सबसे बड़ी वजह बने। सबसे फेमस और पहला इंपॉर्टेंट रूल था सीक्रेसी रूल। डेलीगेट्स ने डिसाइड किया कि प्रोसीडिंग्स पब्लिक नहीं होंगी, ना जर्नलिस्ट अंदर आ सकते थे, ना स्पीचेस न्यूज़पेपर में पब्लिश होंगी, ना डेली रिपोर्ट्स रिलीज होंगी। हॉल की विंडोज भी अक्सर बंद रखी जाती थी, दरवाजे बंद रखे जाते थे। पर्पज क्या था?
ताकि डेलीगेट्स पब्लिक प्रेशर के बगैर फ्रीली डिबेट कर सकें। अगर हर स्पीच अगले दिन न्यूज़पेपर में छप जाती तो डेलीगेट शायद अपनी स्टेट को खुश करने के लिए स्पीचेस करते, लेकिन सिक्रेसी की वजह से वो ऑनेस्टली अपनी पोजीशन चेंज भी कर सकते थे, कंप्रोमाइज भी कर सकते थे। इसी कॉन्फिडेंशियल इन्वायरमेंट ने जेन्युइन कॉन्स्टिट्यूशनल डायलॉग को पॉसिबल बनाया। रूल नंबर 2 था वन स्टेट वन वोट। चाहे किसी स्टेट की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो या बहुत कम, कन्वेंशन के अंदर हर स्टेट के पास सिर्फ वन वोट था। डेलीगेट्स पहले आपस में डिस्कशन करते, फिर स्टेट डेलीगेशन कलेक्टिवली डिसाइड करते कि उसका वोट क्या होगा। ये सिस्टम टेम्परेरी प्रोसीजरल अरेंजमेंट था। बाद में रिप्रेजेंटेशन का इशू कन्वेंशन के सबसे बड़े डिबेट में तब्दील हो गया। रूल 3 था मेजॉरिटी डिसीजन। कन्वेंशन की प्रोसीडिंग ऑर्डरली चलाने के लिए पार्लियामेंट्री प्रोसीजर फॉलो की गई। प्रपोजल प्रेजेंट होते, डिबेट होती, आर्गुमेंट दिए जाते, अमेंडमेंट सजेस्ट होती, फिर वोटिंग होती। हर डिसीजन रीजनिंग और डिस्कशन के बाद लिए जाते। रूल नंबर 4 था फ्रीडम ऑफ डिबेट। कन्वेंशन के अंदर डेलीगेट्स को ओपनली डिसएग्रीमेंट करने की फ्रीडम दी गई। जूनियर डेलीगेट्स भी सीनियर लीडर से डिसएग्री कर सकते थे। अलेक्जेंडर हैमिल्टन कई मरतबा दूसरों से मुख्तलिफ ओपिनियन देते। जॉर्ज मैसन की प्रपोजल क्रिटिसाइज करते थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन कंप्रोमाइज की तरफ इनकरेज करते थे। जेम्स मेडिसन लॉजिकली आर्गुमेंट्स के थ्रू अपना केस प्रेजेंट करते थे। यानी अथॉरिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंस रीजनिंग को दी गई। इसी वजह से कन्वेंशन इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस की मिसाल बन गई। रूल 5 था अटेंडेंस और कमिटमेंट। डेलीगेट से एक्सपेक्ट किया गया कि वो रेगुलर अटेंडेंस मेंटेन करें। डिबेट्स रोजाना कई कई घंटे चलती थी। समर की गर्मी थी, हॉल की विंडोज सिक्रेसी की वजह से बंद रहती थी, वेंटिलेशन बहुत कम थी। फिर भी डेलीगेट्स लगातार मंथ तक डिस्कशन करते रहे। ये उनकी कमिटमेंट को शो करता है। वो समझ चुके थे कि उनके डिसीजन सिर्फ उनकी जनरेशन के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बहुत अहम होंगी। तो जब मई 1787 में डेलीगेट्स फिलाडेल्फिया आए थे तो ऑफिशियली इनका मिशन सिर्फ आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन को रिवाइज करना था। लेकिन कुछ ही हफ्तों के अंदर उन्होंने महसूस कर लिया कि पुरानी बिल्डिंग की मुरम्मत से काम नहीं चलेगा, एक नई बुनियाद रखनी होगी। इस साल के अंदर आने वाले हफ्तों में रिप्रेजेंटेशन, फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, चेक्स एंड बैलेंसेस और इंडिविजुअल लिबर्टी पर वो हिस्टोरिक डिबेट शुरू होंगी, जिनका नतीजा यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन की सूरत में निकला। ये सिर्फ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल बना जिससे दुनिया के बहुत से मुल्कों ने इंस्पिरेशन ली। इसलिए फिलाडेल्फिया कन्वेंशन को सिर्फ अमेरिकन हिस्ट्री का इवेंट नहीं बल्कि वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का एक डिफाइनिंग मूवमेंट माना जाता है। और अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि इसी कन्वेंशन के अंदर वर्जीनिया प्लान, न्यू जर्सी प्लान, ग्रेट कंप्रोमाइज और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग की वो ड्रामेटिक डिबेट्स कैसे हुई जिन्होंने एक नई रिपब्लिक की बुनियाद रखी। हिस्ट्री हमें यह सिखाती है कि अजीम कौमें सिर्फ जंग जीत कर नहीं बनती बल्कि वो तब बनती हैं जब उनके अंदर लीडर अपने इख्तलाफात को डायलॉग, विजडम और कंप्रोमाइज के जरिए एक मुस्तहकम निज़ाम में तब्दील कर देते हैं। और फिलाडेल्फिया कन्वेंशन इसी हिकमत और फोरसाइट की बेहतरीन मिसाल थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह डिटेल हिस्टोरिकल जर्नी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जहां हम फिलाडेल्फिया कन्वेंशन के अंदर होने वाली हिस्टोरिक डिबेट को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करेंगे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।